Hi friends, welcome to the channel. So over the last 2 to 3 days, we have seen that a lot of information is being shared with respect to NABARD Grade A notification being released very soon. And it is also being predicted that NABARD Grade A exam might be conducted twice this year. एक notification अभी आएगा and the second one in the month of December. तो हम इसके बारे में बात करेंगे that according to us what is the information that we have with respect to NABARD grade A notification coming soon. But उससे पहले मैं एक बहुत important topic यहाँ पे hit करना चाहूंगा because lot of students are doubting all these informations which are being shared with you, and there is a reason behind that because if you see over the last 4 to 5 months बहुत सारी information आपके साथ share की जा रही है. ठीक है. December, November 2022 में it was shared that SEBI will happen in the month of Jan. Then in January 2022 some said that now SEBI will not recruit in the journalist stream. Some said now that notification might come in the month of Feb for journalist and legal stream, right? और ये information सभी share कर रहे हैं. I'm not saying कि कोई और कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं. Everybody is sharing what from whatever source they are getting that information. February 2022 में RBI grade B will happen in the month of April. March 2022 में since the notification was not out for the exam to happen in April, now it was further revised that now RBI grade B will happen in the month of May. In March 2022, NABARD grade A notification के बारे में भी अब information share की जा रही है that NABARD grade A notification will come soon. So what we have seen is that many a times this information has turned out to be false. SEBI नहीं हुआ जनवरी में, SEBI फरवरी में भी नहीं हुआ, RBI grade भी अप्रैल में नहीं हुआ. ठीक है, बट रिवाइज डेट्स शेयर की जा रही हैं यूट्यूब चैनल्स पे. अगर आप देखेंगे दैट नाउ RBI grade B will happen in the month of May. But kahin na kahin, this is creating a doubt in the mind of student that are these institutes misguiding us? Is this a marketing gimmick to sell the courses by creating a hype that notification is going to come very soon? देखिए, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा that what I feel is this is my perception that everybody in this domain is a reputed one, and all they are doing is they are just sharing the information that they are getting from their trusted source. But the hard truth is that the only predictable thing in the regulatory body domain is the unpredictability of these exams. This is the hard truth. You have to accept it. Nobody can predict with surety के इस एग्जाम की ये डेट है. ये एक हार्ड ट्रूथ है. पिछले साल किसी को नहीं पता था नाबार्ड आएगा. इनफैक्ट काफी चैनल्स जो बहुत जल्दी प्रेडिक्ट करते हैं, दे आल्सो सेड दैट नाबार्ड ग्रेड ए इज नॉट गोइंग टू कम वेरी सून, बट नाबार्ड ग्रेड ए आया. सब सो रहे थे और नाबार्ड ग्रेड ए आ गया. Everybody was saying that SEBI will come in the month of January, all that. It didn't happen. So this is the hard reality. And this unpredictability comes from the very fact कि इनका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है. सेबी का चेयरमैन चेंज होता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है. किसी रेगुलेटरी बॉडी का एचआरडी ऑफिसर छुट्टी पे है, द रिक्रूटमेंट माइट गेट डिलेड बिकॉज इज नॉट एबल टू साइन. किसी को इमीडिएट वर्कफोर्स की जरूरत है, दे विल स्टार्ट हायरिंग इमीडिएटली, right? Because there is no cycle. They can do it whenever they want. They can delay it whenever they want, and this is actually hurting them the most. This is actually hurting them the most, I would feel, because what they want is the best talent in the country, and by not having a fixed calendar, these organizations are depriving themselves of the best talent. So I think this is high time. ये जितनी भी problems हैं, all these problems are arising out of the mere fact that these organizations do not have a fixed calendar. RBI and NABARD, they are recruiting from the last, I think, 10 years continuously, at least 10 years. I mean, what is the problem for them to come out with a fixed calendar? I am not sure about that. It is high time. It is high time. So one is that these regulatory bodies have to suddenly, I mean, find a feasible solution to this so that no student is well informed and they get the best talent in the country. On the student side, I would say that yes, there is too much information being shared which is actually disturbing you, which is actually disturbing your concentration. But I think if we think deeply, the problem is not too much information. Everybody is sharing what they know because in some way it is helping you also to plan your studies. So problem is rather not too much information, rather problem is in the impromptu way we react to the news. अभी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई डिले हो गया है लेकिन नबार्ड आने वाला है, नबार्ड पे लग जाओ. अच्छा, सेबी की अभी जर्नलिस्ट टीम की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, पता नहीं शायद 6 महीने बाद होगी. आई जस्ट स्विच टू आरबीआई, लीव सेबी indefinitely. So when we have that kind of no attitude,
I'm not saying that you need not adapt, but we just jump from one corner to the other once we get a set of news. That is actually creating a problem. I think for a student, it's a high time that you choose the list of exams right at the start of the year कि मुझे इस साल ये 3 एग्जाम देने हैं, ये मेरा प्लान है. अगर इसमें से ये एग्जाम जल्दी होता है, ऐसा होता है, मेरी उस टाइम तैयारी नहीं होगी, मैं इसको छोड़ दूंगा. आई ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस एग्जाम. राइट, तो आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ एट द रिसीविंग एंड. इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है एंड यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू इट. और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, आई एम नॉट सेइंग इग्नोर इट, यू हैव टू एनालाइज इट बिकॉज अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू टू प्लान. और काफी बार ये इंफॉर्मेशन सच भी निकली है, दैट ऑल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट. यस, एग्जाम हमने जैसे बोला कि अप्रैल में होगा, नहीं हुआ, लेकिन मई में, अब मई में आप देखेंगे अगर होगा तो काफी चांसेस है होने के, और उन्हीं डेट्स में होगा जो प्रेडिक्ट की जाती है. सो देयर इज सम फैक्चुअल एलिमेंट, राइट, इन वट एवर इज बीइंग शेयर्ड विच इज करेक्ट, बट काफी बार ये गलत होती है. मैं आपके उसको रीजन बता चुका हूं. और आपको क्या चाहिए, आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा एब्जॉर्ब कीजिए, एनालाइज कीजिए एंड देन रिएक्ट. डू नॉट जस्ट जंप कि अच्छा अभी नबार्ड आने वाला है तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नबार्ड टुडे ऑनवर्ड्स. टेक टाइम, एनालाइज वेदर यू आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर फॉर बोथ आरबीआई एंड नबार्ड. What will happen if you keep preparing for RBI and then NABARD will come and RBI will not come? What will happen to you? You all have to think about that, right? And your choice will come out from your preferences, right? What you want in life. It is not somebody can dictate you. So ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है. Predictions will keep happening. We also have to fulfill our responsibility based upon whatever news we are getting. But you please analyze everything and plan in advance. That is very, very important for you. Now, coming back to the main question, is NABARD grade A notification coming soon? The answer to this is probably yes. I'm again saying probably yes. ये कोई 100% yes नहीं है कि कोई ब्लैंक पेपर के या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको दे देगा और बताएगा कि हाँ पक्का आ रही है. But as per our source, it is probably yes. I talked to my friend who is at a very senior level in NABARD, and the moment I asked him that क्या NABARD grade A का notification आ रहा है, he was like yes. He didn't tell me that I will just ask from somebody and then tell you. He was like yes, aa raha hai. And he told me that a lot of retirements are happening in NABARD in the coming year. There is already a huge staff shortage, which is actually going to aggravate, right, with the retirements coming this year. So उनके मुताबिक notification कभी भी आ सकता है. In fact, he told me that he got news about the NABARD notification last month के planning चल रहा है. So he thinks के मार्च में आ सकता है या फिर अप्रैल जल्दी आ सकता है. बट अगेन nobody can tell you the exact date कि यार ये 25 मार्च को आएगा या 4 अप्रैल को आएगा. Because again, one thing you need to remember, as I told you, the unpredictability about these exams, and there is a lot of bureaucratic procedure that these organizations have to follow, and only once that is done, they will come out with the recruitment advertisement. दूसरी न्यूज है कि will recruitment happen twice in 1 year? I think this is thinking too far right now because this should not impact you. अभी अगर रिक्रूटमेंट इस साल दिसंबर में होती भी है, एक नोटिफिकेशन आता है, व्हाट इम्पैक्ट डज इट मेक टू यू? बिकॉज एनीवेज अगर दिसंबर में नहीं आना था तो अप्रैल में तो अगले साल आ ही जाना था, अगर इस साल अप्रैल में एग्जाम हो रहा है. सो दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट? इट्स ठीक है, ये वाला पोस्टपोन हो गया, प्रीपोन हो गया है. ये वाला हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर अप्रैल में आता है तो अगले वाला भी एक तरह से प्रीपोन हो गया. आई मीन डजंट मेक सेंस टू रियली गेट एक्साइटेड बाय द वेरी फैक्ट दैट नाउ रिक्रूटमेंट इज हैपनिंग ट्वाइस इन 1 year. ठीक है, फिर 2024 में क्या होगा? क्या रिक्रूटमेंट अप्रैल में दोबारा आएगी दिसंबर में आने के बाद? नोबडी हैज क्लैरिटी ऑन दैट. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी टेकिंग इनटू अकाउंट. दिस इज नॉट समथिंग के 2 बार हो रहा है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दिसंबर में नहीं होना था तो अप्रैल में तो होना ही था, मई में तो होना ही था, राइट? सो इट्स जस्ट लाइक यू कैन से के प्रीपोनिंग हो रहा है. 2024 में शायद जुलाई में दोबारा आ जाए, एक एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट आ जाए. ठीक है, अभी दिसंबर में आएगी, फिर शायद जुलाई में दोबारा आ जाए 2024 में. बट आई मीन as long as you're giving your best, you're preparing, it's not about कि आपको कितने attempts मिल रहे हैं. Because anyways these exams are happening over the last 12 to 13 years continuously. तो दिसंबर नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, मार्च अप्रैल मई में आ जाना था, राइट? सो डोंट थिंक टू फार here right now कि वो 2 बार आएगी, नहीं आएगी. एक बार आने वाली है जो कि काफी सोर्सेज से हमने कंफर्म किया है. ठीक है, अब उसमें भी चेंज होगा या नहीं होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है. बट राइट नाउ दिस इज द न्यूज व्हाट वी आर शेयरिंग. जो भी मुझे पता है मैंने आपको सच सच बता दिया. आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू द लॉजिक that always listen to what we are saying and then analyze and then take action. Do not just react impromptu.
ओ आ गई, अब क्या करें? नहीं, ऐसे नहीं करना है, टेक टाइम, थिंक। बहुत सारे लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ द हिस्ट्री सेज दैट नेवर has happened in the history that these two notifications have clashed. आप देखेंगे आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एक एग्जाम का फेज वन ना हुआ हो और उससे पहले दूसरे का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अभी आरबीआई ग्रेड बी भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एट द सेम टाइम वी आर सेइंग नबार्ड ग्रेड ई की भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो क्या नबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ रहा है और आरबीआई ग्रेड बी का डिले होगा? नाउ अगेन रिमेंबर दिस, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल इफ यू सी इन रियल टर्म्स। बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, बट आई थिंक दिस time it can be an exception that both these notifications might clash due to the sole reason that NABARD is really in huge shortage of staff and they need to somehow recruit people at a good pace. और वो ज्यादा लोग एक साइकिल में क्यों नहीं रिक्रूट करें? दिस माइट बी अ क्वेश्चन कि 2 बार रिक्रूट करने से अच्छा वो भी 300-400 लोग रिक्रूट कर लें नबार्ड वाले। बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट आल्सो कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू नो से एब्जॉर्ब पीपल एट सच अ रेट कि 300 लोगों को रिक्रूट करके ट्रेन भी कर लें, एब्जॉर्ब भी कर लें। दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। उसमें भी काफी एफर्ट लगता है लोगों को ट्रेन करने में, पोस्ट करने में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने में। so that's why they would be recruiting it differently. ठीक है, तो ऑल आई कैन से इज, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी हमें पता थी हमने आपके पास शेयर कर दी है। मैंने कुछ नहीं छुपाया है, मैंने कुछ गेम नहीं खेली है, मैंने कुछ आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है। ठीक है, एंड नाउ इट इज ऑन योर पार्ट, it is your responsibility to analyze this and then react. And when you analyze this, always consider that there is 10 to 20% chance of this information being shared with you turning out to be incorrect. Not that it was false in the first place, just due to the mere fact it might turn out to be false, because again those bodies are doing it in a kind of unplanned manner. एक फिक्स डेट अगर शुरू से ही दे दी जाए तो शायद काफी क्लैरिटी हो। तो 15-20 दिन, 1 महीना इधर उधर होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। बट आप इसको देखिए, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज नथिंग टू लूज। आरबीआई अगर डिले भी होगा, इट इज फॉर योर बेनिफिट, बट राइट नाउ यू एज्यूम कि वो उसी टाइम पे हो रहा है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड, राइट, आई नाउ देयर माइट बी सम पैनिक कि नबार्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ रहा है, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन जुलाई, बट डोंट वरी। ठीक है, आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा रीओरिएंट करिए। वी विल कम आउट विद अ स्ट्रैटेजी फॉर नबार्ड। ठीक है, और जैसा कि सुनने को मिल रहा है, आफ्टर दिस अटेम्प्ट द नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट यू विल गेट विल बी वेरी सून। सो आप अगर जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, डोंट वरी, राइट, अडेप्ट टू योर न्यू प्लान एंड बी रेडी फॉर बैक टू बैक अटेम्प्ट। सो देयर इज नथिंग टू लूज फॉर यू हियर ऑल्सो। डोंट गेट पैनिक, वी विल हेल्प यू आउट। और अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे काफी लोग आरबीआई पे स्विच कर चुके हैं, तो keep continuing that. Otherwise, if you are solely preparing for SEBI, keep doing that. मेरा ये विश्वास है, दो आई डू नॉट हैव एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कि सेबी रिक्रूट तो करेगा देर सवेर। ठीक है, सो आई नो अगर 1 साल 2 साल बाद रिक्रूटमेंट होती है, इट इज वेरी हार्ड टू वेट फॉर सो लॉन्ग, सो देर इज अ सर्टन एलिमेंट ऑफ रिस्क देयर। बट अलॉन्ग विद सेबी यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम। ठीक है, पर सेबी को मत छोड़िए। अगर आप फर्स्ट प्लेस में सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए, बिकॉज अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट सेबी गाइस। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट्स कमिंग, आईएफएससीए आपने देखा है, पीएफआरडीए, ठीक है, एनपीएस, ये सारी नोटिफिकेशंस कहीं ना कहीं सेबी के सिलेबस से ही निकलती हैं। सो इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सेबी, देयर इज गुड इवन चांस फॉर यू कि आप इनमें से किसी एग्जाम को भी क्रैक कर। सो दिस इज ऑल आई हैव टू टेल यू, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, बट आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है और प्रोएक्टिव रहना है और अपने एग्जाम्स को फोकस करके क्रैक करना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आया है। आई होप आप समझ गए होंगे, और कमेंट करके बताएं कि सर आई विल नॉट बी रिएक्टिव, आई विल एनालाइज एंड देन आई विल टेक एक्शन। सर आई विल नॉट बी रिएक्टिव, आई विल एनालाइज एंड देन टेक एक्शन। बाय बाय।